So again, we are just starting our full mock for the bar. Yes, sir. Now, just give you a brief intro about yourself. Sir, my name is Vigyan Singh, and I have done my 10th and 12th from Patna. After that, I did my BTech from Sikkim Manipal Institute of Technology from Sikkim Majitar. And currently, sir, I am in my 8th semester, 4th year, doing my major project. Okay, so what's your project in a BTech? Sir, basically my project is regarding time and motion study in a small scale production house, like a production warehouse, you can say. So what are you doing in that? Sir, so what I am doing is they perform various manufacturing processes like welding and turning or cutting, all these different kinds of process. So what I do is first I record the total time that a particular worker is taking to manufacture a particular product, like time-based study, and then I try to minimize that time by saying, is there any kind of wastage is there, so that part is time study. And in motion study, sir, I basically see that is there any motion wastage or not. For example, suppose if a worker is cutting a sheet, then for measuring the dimension he is traveling a long distance to a table and then using his scale to measure it and then again coming back. So these are causing motion wastage. So I tell them that here you can minimize your wastage. Okay, I don't know about the product layout and a process layout. Product layout, yes, sir. What is the meaning of product layout and process layout? Sir, so in product layout, I think we give preference to a product. I mean, there is a conveyor belt on which a product is moving from one place to another, and various machines are placed on the beside the assembly line. And while traveling of the product, these machines do their respective job on the product, and when it comes out of the assembly line, the we get the finished product. I don't know about the bill of material. What do you mean by bill of material? Yes, sir. Sir, this bill of material basically gives us the information regarding various spare parts that is required for manufacturing of a given product. Like for manufacturing of a product, say A, we require 3 units of B, 4 units of C, and 6 units of D, and then the sub parts which are then required for manufacturing of B, C, and D, like this. What do you mean by job flow time and make spend time? Difference between the job flow time and make spend time. Sir, this make spend time is like suppose we are starting the manufacture of a given product on a given machine. So, for example, like we are having two machines. One is machine one and the other one is machine two. Then first of all, what we will do that we will use this Johnson's algorithm to get our proper sequence, and then we will start sending the jobs according to that sequence. So from the beginning of the first job till it is coming out of the machine, the total time that is taken is called make spend time. And for a given machine, if we are adding the respective manufacturing time of various products, then we get the job flow time of that particular machine. What do you mean by tardiness? Sir, tardiness is like suppose we are required to make complete our production on a scheduled time, but we are taking more time than that. Then that is going to create tardiness. Okay. Do you know about the break-even point? Yes, sir. Sir, so break-even point is that point if we are producing that much amount of product, then we are neither having a profit nor having a loss. What do you mean by EOQ? Sir, EOQ is that amount of quantity at which our inventory cost is minimized. Inventory cost is minimum. Can you make that diagram where you just showing the different types of cost and also show that EOQ point? Okay, sir.
Sir, is it visible, sir? Yeah. Okay, why the holding cost is going to be decreases? Sir, actually, sir, ordering cost will decrease with increase in. Why the holding cost and ordering? Why the ordering cost is increasing? Sir, like if we are ordering more number of quantity of inventory, then we need to have proper care of that much amount. So if we are increasing the amount of inventory, then obviously we will require more space, more resources to keep track of it, so that nothing goes bad or no defect come in our inventory. That's why it is going to increase. What do you mean by setup cost? Sir, setup cost is basically, for example, we are doing in-house production of inventory. Then for starting, for the beginning of manufacturing of that inventory, we need to set up the warehouse and bring all the machines to the functioning situation. So the cost which is involved in bringing the whole setup to function is called setup cost. Okay. Again, I will just give you the feedback. In an industrial point of view, just you are okay, but whatever you are just saying that in your project is that not be effective, है ना? आप जो कह रहे हो ना कि हम लोगों ने क्या किया, फ्लो टाइम को कम कर दिया, जो ऑपरेटर या क्या कहते हैं लेबर इधर से उधर मूव कर रही थी, वो मूव नहीं कर रही थी, मिनिमम कर रही थी। बट आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है। प्रोसेस लेआउट में क्या, सॉरी प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है कि एक ही जगह पर सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। बट व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस लेआउट, जैसे मुझे अगर कोई ऑटोमोबाइल बनाना हो तो ऑटोमोबाइल के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन जिस वे में मूव होंगे, जिस वे में बनेंगे, उसी वे में मशीनिंग को अरेंज करता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. I don't know about the fixed position layout. Yes, sir. Fixed position layout जैसे सर एरोप्लेन या शिप बिल्डिंग का टाइम जो यूज होता है कि तो आपको पता होगा ऑलरेडी हम उसी वे में डिजाइन करते हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होती है। यस सर। अभी ये कॉलेज की जो वर्कशॉप होती है अलग वे होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए होता है। बट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इट इज ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू दैट कि अगर मेरा प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ जाना चाहिए, फिर यहाँ जाना चाहिए। इट्स अ मिनिमम टाइम। जो आइडल टाइम बीच का होता है ना मूवमेंट का, वो मिनिमम होता है। सो यू हैव टू जस्ट स्टडी योर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स वेरी इफेक्टिवली कि यू कैन जस्ट इन्फ्लुएंस द एग्जामिनर क्या आइदर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना। वो मुझे प्रोजेक्ट सुनने के बाद लगा नहीं कि आपका कुछ बहुत ज्यादा इफेक्टिव उसमें वो रहा, या फिर आप कोई केस स्टडी लेके मुझे बताओ यहाँ सर इस वाली इंडस्ट्री में या ऐसी जगह पे ऐसा होता था। नाउ वी आर मिनिमाइजिंग द टाइम, नाउ वी आर चेंजिंग दीज फैक्टर्स, नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज, है ना। ये रफ जो आप आइडिया दे रहे हो ना, इससे सेटिस्फाइड। ओके, नाउ अदर फैकल्टी विल इंटरेक्ट विद यू। यस, ओवर टू यू सर, प्लीज। ओके सर। ओके सर। अभिज्ञान सिंह, राइट? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। अभिज्ञान, मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर और सर फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हें। अच्छा ये बताओ कि भी टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम बना के दिखाओ मेरे को, किसी भी एक साइकिल के लिए, कोई भी साइकिल ले लो। सर कार्नोट साइकिल का सर बना सकते? हाँ बनाओ बनाओ। सर विजिबल है? हाँ हाँ हाँ, नीचे ला दिखाना, टीएस डायग्राम भी दिखाना। हाँ सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ पीवी डायग्राम क्या इन्फॉर्मेशन देता है और टीएस डायग्राम क्या इन्फॉर्मेशन देता है? सर पीवी डायग्राम के सर हेल्प से हम सर वर्क डन किसी भी प्रोसेस के अंडर कितना हो रहा है सर वो निकाल सकते हैं। और अगर सर रिवर्सिबल प्रोसेस है सर तो टीएस डायग्राम से सर हमको हीट इंटरेक्शन का पता चलेगा। ओके, अब ये बताओ अगर मेरे को फर्स्ट लॉ की नॉलेज है, यस सर, तो फर्स्ट लॉ कार्नोट साइकिल में क्या हेल्प करता है?
सर फर्स्ट लॉ से सर बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल हीट है वो उसका कुछ पार्ट वर्क में जाएगा और कुछ पार्ट सर जो नीचे का लो टेम्परेचर रिजर्वायर है उसमें बस चला जाएगा। मतलब बेसिकली जो मेरा टोटल हीट है, टोटल हीट इंटरेक्शन है, वो टोटल हम्म। वर्क इंटरेक्शन के इक्वल होगा, क्योंकि सर प्रोसेस साइक्लिक है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा। लेकिन सर कितना वर्क मिलेगा इसका कोई आइडिया वो नहीं बता, नहीं दे सकता ये फर्स्ट। ओके, तो सेकंड लॉ क्या बताता है फिर? तो सर सेकंड लॉ ये बताएगा कि अगर मेरे पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, तो उसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट को ही हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ पोर्शन जो है वो मेरा नीचे लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट रिलीज के फॉर्म में जाएगा ही जाएगा। मतलब पूरा हीट को ओके, हम वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो मिनिमम मेरे को कितना हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये कैसे पता लगेगा? सेकंड लॉ कैसे बताता है उसके बारे में? अगर मैं सर कार्नोट साइकिल लेता हूँ कोई, और आई वांट टू नो कि भी कितना मिनिमम हीट मेरे को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, यस कैसे सर। बताएगा वो सेकंड लॉ? तो सर सेकंड लॉ में सर एक कॉन्सेप्ट होता है सर एंट्रोपी जनरेशन का। तो सर अगर मान लेते हैं मेरे पूरे के पूरे प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन सर जीरो हो जाए, तो मेरा हम्म। उस केस में जो हीट रिजेक्शन है जो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर के पास, वो सर मिनिमाइज हो जाएगा और वर्क आउटपुट सर मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये तो एक प्रिंसिपल यूज कर। काम करो इस साइकिल के लिए, हम्म। कि वो जो रिजेक्शन है मिनिमम है, हम्म। वो निकाल के बताओ कैसे निकालोगे यस। यूजिंग सेकंड लॉ। हाँ। क्या कंसेप्ट यूज किया आपको बताते रहो साथ साथ। हाँ सर। तो सर एक ऊपर में सर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होगा सर, जिसका कि टेम्परेचर TH अगर हम मतलब अज्यूम कर रहे हैं। और फिर सर वहां से हीट निकलेगा और हीट इंजन के पास जाएगा, जो कि सर साइक्लिक है। और उसके बाद उस Q1 का कुछ पार्ट सर वर्क में कन्वर्ट होगा, और सर कुछ Q2 पार्ट जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर के पास जाएगा, जो कि TL टेम्परेचर। तो सर फर्स्ट लॉ से हम लिख सकते हैं कि Q1 जो है वो W+Q2 के इक्वल है। और सर हम्म। जो मेरा इंट्रोपी जनरेशन होगा इस केस में, वो सर इंडिविजुअल कंपोनेंट के इंट्रोपी चेंज के इक्वल हो जाएगा, मतलब सिस्टम हम्म। प्लस सराउंडिंग। तो सर जो हम्म। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है उससे अगर Q1 हीट रिलीज हो रहा है, तो सर उसका इंट्रोपी चेंज होगा -Q1/TH। फिर सर हम्म। हीट इंजन जो है वो अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि साइक्लिक है, तो सर उसका इंट्रोपी चेंज सर जीरो हो जाएगा। तो सर उसको हम हटा देंगे। और सर फिर जो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर है उसका जो Q2 हीट जो उसके पास जा रहा है, उसको सर हम Q1 - W लिख सकते हैं। तो उसका इंट्रोपी चेंज हो जाएगा सर +Q1 - W/T लोअर। तो सर ये टोटल इंट्रोपी जनरेशन होगा। और सर इसको जीरो के इक्वल कर देंगे तो हमको सर Q1 और W में एक रिलेशन मिल जाएगा। Q1 और W में रिलेशन मिलेगा? यस सर। ओके। और सर वहां और फिर सर फर्स्ट लॉ यूज करके हम Q2 और Q1 में भी मतलब एक मतलब रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक सिंपल सा प्रोसेस लेते हैं कोई। हम्म। क्या? सर कौन सा प्रोसेस सर? हेलो, आई एम ऑडिबल हाँ। टू यू? हाँ सर। हाँ सर। एक प्रोसेस लेते हैं, प्रेशर कुकर में मैंने वाटर रखा है, वाटर वेपर भी है उसमें, दोनों है। यस सर। मैंने उसको हीट करना भी शुरू किया है। ठीक है। यस सर। यस सर। आई एम अज्यूमिंग कि विस्लिंग नहीं हो रही है। हम्म। तो पीवी डायग्राम के ऊपर ये प्रोसेस प्लॉट करके बताओ।
सर तो अगर सर विस्लिंग नहीं हो रहा है तो सर इसका मतलब वॉल्यूम तो सर कांस्टेंट रहेगा ना। हम्म। तो सर और सर यहाँ पे सर मिक्स स्टेट है तो इसका मतलब सर ये मतलब वाटर प्लस वेपर का मिक्सचर है तो अ, हम्म। और सर प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हाँ तो बना के दिखाओ ना मेरे को ये पीवी डायग्राम पे। यस सर ऐसा कुछ सर। अच्छा इसमें बताओ पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 यस सर। मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि सेम रह रहा है? मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर सर एक सर। सर मतलब सर ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू तो सर इंक्रीज करेगा। तो अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो सर मास ऑफ वेपर बढ़ना चाहिए सर। ओके ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ। यस यही यही प्रोसेस मेरे को टीएस डायग्राम पे भी प्लॉट करना है। यस सर। प्लॉट करके बताओ। सर इस तरह से सर। ओके इस जो लाइन की है स्लोप कैसे निकालोगे? सर इसका स्लोप एक सेकंड सर। हाँ सर। सर इसको इसमें सर टीडीएस इक्वेशन सर यूज कर सकते हैं। हम्म। तो सर जैसे टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी होता है सर फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। तो सर चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सर डीवी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। हम्म। और सर फिर तो हम टीडीएस को लिख सकते हैं डी ऑफ सीवी डी सीवी इंटू टी। मतलब जो यू है उसको सीवी इंटू टी लिख सकते हैं। तो सर अगर सीवी को कांस्टेंट मान लें टेम्परेचर के साथ तो वो बाहर आ जाएगा। तो मतलब टीडीएस इज इक्वल टू डी। तो सर डीएस जो होगा वो सीवी इंटू डी टी बाई टी हो जाएगा। तो सर अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सर लॉगरिथमिक कर्व आएगा इसलिए सर इस तरह से कुछ। नहीं नहीं, दिखाना क्या एक्सप्रेशन बनाया तुमने। कागज पे दिखाना क्या लिखा है। हाँ स्लोप सर। ऑफ दिस लाइन कैसे क्या होगी? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? सर एक सेकंड सर। स्लोप क्या होगी इस लाइन की? फाइनल एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा? सर ये टी बाई सीवी हो जाएगा। हाँ अब ये बताओ कि टी बाई सी वी जो है ये जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यस सर। ये स्लोप इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? सर इंक्रीज करेगा सर। क्यों? सर क्योंकि कुछ पार्ट मेरा वेपर है और कुछ पार्ट मेरा लिक्विड है। तो सर जब फेस चेंज हो रहा है सर उस पॉइंट पे तो सर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा लेकिन वेपर तो सर हीट एनर्जी लेके वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा इस कारण से सर स्लोप बढ़ते चला जाएगा सर। इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करो, दोबारा बताना क्या बोल रहे हो। सर जैसे कि मेरा जो प्रेशर कुकर है उसमें सर मेरे पास लिक्विड और वेपर का सर मिक्सचर है ना। हम्म। तो सर जो मेरा वेपर पार्ट है वो तो सर जो उसको हीट मिलेगा सर उससे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा ना। अच्छा तो सर इसलिए सर ऐसा लग रहा है सर टेम्परेचर फिर बढ़ना चाहिए और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सर फिर स्लोप मतलब तुमने बढ़ता हुआ स्लोप फिर। लिखी है टी बाई सी वी, यस सर। राइट? टी बाई जैसे सी। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तुम्हारी जो ऊपर वाला है डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं वो बढ़ रहा हाँ। है। यस सर। व्हाट अबाउट सीवी, वो बढ़ रहा है कम हो नहीं रहा सर है? सीवी तो सर कांस्टेंट मानेंगे टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर का कांस्टेंट हो किसी भी? सर मतलब होता नहीं है लेकिन अज्यूम तो यही करते हैं कि कांस्टेंट है। वैसे बढ़ता सर वो भी है दोनों ही बढ़ता है सर। अगर दोनों बढ़ेंगे तो फिर तो कांस्टेंट स्लोप आ जाएगी।
सर दोनों बढ़ेगा तो सर कांस्टेंट तो सर फिर इस बात पे आएगा ना कि दोनों सेम रेट से बढ़ रहे हैं। मान लेते हैं अलग अलग रेट से अगर बढ़ा तो फिर सर चेंज आ जाए। चलो ठीक है, मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ। हाँ सर। तो पहली बात तो ये है कि भी जो तुमने फाइनल बनाया है वो ठीक है, कर्व सारे तुमने ठीक बनाए हैं। यस एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा स्लो है काम, मतलब ठीक है। जैसे T/C तुमने बता दिया। अब सर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन CV बेसिकली डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, उल्टा होता है। अच्छा तो ये अच्छा स्लोप बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है विद अच्छा। टेम्परेचर। तुमने ठीक है सही सर। बनाया, स्लोप सही बनाया है, ठीक है। हम्म। इससे पहले क्वेश्चन था प्रेशर इंक्रीज कैसे करेगा, तुमने जहां पे बना रखा है ना PV डायग्राम को भी देखना। हाँ PV डायग्राम दोबारा दिखाओ अपना एक मिनट। हाँ सर ये वाला सर। हाँ, तो थोड़ा सा इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है 1 to 2, मतलब सर थोड़ा सा मतलब ताकि ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज होती नजर आए डायग्राम में नजर नहीं अच्छा आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक सर, है, ठीक ठीक है वन सर। थिंग इज दिस, नेक्स्ट इज उससे पहले क्वेश्चन पूछा कि भी सेकंड लॉ को अप्लाई करके बताओ कि भी कार्नोट साइकिल में वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तुम उसमें फर्स्ट लॉ भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ उसमें फर्स्ट लॉ जरूरत नहीं है अप्लाई करने की। तुम अगर अच्छा, एंट्रोपी जनरेशन को जीरो एक्सक्यूज मी करोगे। सर, हाँ मैं जी सर। इंटरप्ट सर। आकृति प्लीज लीव नाउ। आप बेटा, आपका भी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, आपके सुबह मैम के साथ है, प्लीज लीव नाउ, है ना। ओके सर, ओके सर। शी विल स्टार्ट आफ्टर सम 15 मिनट्स, है ना। यू कैन यस ज्वाइन। सर। हाँ ओके सर, प्लीज हेलो। कंटिन्यू। हाँ जी हाँ यस जी। सर यस सर। तो तुम्हारा जो जो सेकंड लॉ से क्या निकलेगा, अगर एंट्रोपी जनरेशन को मैं जीरो कर दूंगा, Q/Q1/T हॉट जो आएगा वो यस नेगेटिव आएगा, Q2/T लोअर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दोनों को ऐड करोगे, जीरो कर दोगे, तो वहीं यस से सर। तुम्हारा Q2 निकल आएगा। हाँ भी हाँ जो तुम हाँ लॉस कर रहे हो, लीव कर रहे हो, वो टेम्परेचर रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ तुम्हारा हाँ टेम्परेचर कितना है, ठीक है। हाँ हाँ सर हाँ उससे सीधा सीधा उसी से तुम्हारा एक्सप्रेशन निकलेगा। यू डोंट नीड टू हाँ। हैव फर्स्ट लॉस एक्सप्रेशन जिसमें यस तुम सर। W निकाले ना वर्क से निकालोगे। तुम उसमें हाँ वर्क वर्क का कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर समझ गया समझ गया। इसमें से फिर तुम जो वर्क निकालोगे दैट विल बिकम अवेलेबिलिटी, यस सर राइट। यस सर। और अवेलेबिलिटी जो होती है वो होती है मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी टेकन फ्रॉम दैट हाई रिवर्सिबल टेम्परेचर साइकिल, रिजर्व। यस सर साइकिल, यस यस ठीक सर है। यस यस सर तो यस। इसके ऊपर थोड़ा सा अपना कंसेप्ट ब्रश अप कर लेना। ठीक बाकी है सर। नॉलेज वाइज तुम अच्छे हो, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। यस सर ऑल द यस। बेस्ट, ऑल द यस सर बेस्ट। थैंक यू सर थैंक यू सर। ओवर टू मनीष सर। Okay, Afiq, यस सर। are you ready? यस सर यस। Okay, so enter your favorite subject is strength of material, correct? यस सर। So now, first you draw a cantilever beam यस सर। and apply a point load at its free end. ओके सर। सर डन। Then draw SFT, PMT and deflection curve. यस सर सर इज इट विजिबल सर? Not visible. Now it is visible. Okay. SFT एंड सर and बॉटम पार्ट PMT. इज DMD.
Which one? Yes, now this is PMD. And Yes, what sir. about deflection curve? And sir, this is the deflection. Deflection curve. Okay. Now, if we shift this load from free end to some another location, Yes, sir. correct? In between fixed and free end, somewhere. Yes, sir. Then what will happen in deflection curve? सर तो जहां पर सर पॉइंट लोड जिस पॉइंट पर आएगा सर फिक्स्ड एंड से वहां तक सर इलास्टिक कर्व तो सर पैराबोलिक वेरिएशन देगा और सर जहां पे सर पॉइंट लोड जहां लगा हुआ है फिर वहां से लेकर फ्री एंड तक सर वो स्ट्रेट टाइम है सर इलास्टिक कर्व। तो फ्री एंड पे फिर डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो सर फ्री एंड पे सर डिफ्लेक्शन मान लेते हैं सर हम एल नॉट यूनिट शिफ्ट कर दिए लेफ्ट साइड सर ये पी लोड ठीक है तो सर मेरा स्लोप जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है सर वहां पे स्लोप हो जाएगा P इंटू एल माइनस एल नॉट स्क्वायर बाई 2EI और सर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एल नॉट से और सर उसमें ऐड कर देंगे P इंटू एल माइनस एल नॉट होल क्यूब बाई 3EI तो सर ये हो जाएगा सर डिफ्लेक्शन। Okay, correct. Okay, now suppose its cross section is rectangular, correct? Yes. Then one point is lie on at the top of the rectangular cross section. Yes, sir. And one point at the bottom and another point at the neutral axis, correct? Yes, sir. So can you draw more circle for these 3 points? Okay. Sir, this is for the top point, sir, the first diagram. Okay. Sir, then this is at neutral axis, sir. At a neutral axis? Yes, sir. Okay. And sir, this is for sir bottom point, sir. Bottom point, correct? Okay. Now draw a shaft whose one end is fixed and another end is free. Yes, sir. Then apply a twisting moment at free end. Yes, sir. Then draw slope versus length diagram. Sorry, angle of twist versus length diagram. Okay, sir. Sir, it will be sir linear. Linear. Yes, sir. Okay, maximum at the free end, correct? Yes, yes, yes. And also draw a shear strain versus radius diagram. Sir, shear strain. Yes. If the cross section of the shaft is circular. Okay, sir. Sir,
Sir, this will be, sir, strain diagram. Sir. Strain diagram. Yes. And suppose if we make a hole in such Yes. a way that the centroid is remain same. Yes, sir. Then what will happen in shear strain versus radius plot and theta versus length plot? सर तो अगर सर ये क्या बोलते हैं, इसमें अगर सर होल्ड कर देते हैं तो सर मेरा थीटा का जो रिलेशन होता है वो आता है मेरा टी एक्स बाई जी जे। सर एक्स मतलब लेंथ होगा सर फिक्स्ड एंड से, तो सर होल्ड करने से सर जे कम हो जाएगा सर। तो जो मेरा हर एक पॉइंट का सर जो एंगुलर स्ट्रेन है वो सर बढ़ जाएगा क्योंकि सर जे कम हो जाएगा। तो आपका थीटा इंक्रीज रहेगा। हाँ हाँ सर, मतलब एक तरह से सर कहें तो स्लोप इंक्रीज हो जाएगा मेरे ओरिजिनल कर्व पर। ओके, स्लोप रहेगा लीनियर ही? हाँ सर रहेगा लीनियर, बस उसका अच्छा, वैल्यू। अगर आपके पास कोई टेपर बार है टेपर, यस सर। एंड टेपरिंग लीनियरली है, यूनिफॉर्म टेपरिंग है, करेक्ट? हाँ सर ठीक है। और जो लार्जर एंड है वो फिक्स्ड है और स्मॉलर एंड फ्री है। हाँ सर ठीक और है। स्मॉलर एंड में अगर टॉर्क टी लग रहा है तो इस केस में आपका थीटा वर्सेस एल ग्राफ क्या होगा? करेक्ट, थीटा हाँ सर। वर्सेस डी ग्राफ क्या होगा? दोनों ड्रॉ करें, हाँ थीटा सर वर्सेस डायमीटर। सर एक ये जो मेरा थीटा वर्सेस एल का सर ग्राफ है सर, ये मेरा सर कोई मतलब लीनियर नहीं होगा सर, कोई मतलब किसी सर कर्व का सर ऑर्डर मतलब इस टाइप का हो जाएगा, 1/x³ टाइप्स, x का पावर -3 से सर वेरिएशन इसका होगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं सर, ऐसा कुछ इक्वेशन इस टाइप से। dx divided by g pi c1x plus c2 सर अगर डायमीटर का लीनियर रिलेशन मान लो तो। ओके, x to the power 3 हाँ सर, रेसिप्रोकल रिलेशन। यस सर, अगर उस तरह से ऑर्डर ऑफ इसका फिर कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? सर इसमें सर कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। यूज करो। एक सेकंड सर। अच्छा चलो इसको देख लेना, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये साफ्ट है, बस प्रिज्मेटिक साफ्ट है। हाँ। अब मैं टॉर्क को शिफ्ट कर रहा हूँ एट मिड स्पैन। अच्छा सर, मतलब क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। हाँ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और टॉर्क को ठीक। हमने शिफ्ट कर दिया फ्री एंड से मिड स्पैन पे। ठीक है सर। करेक्ट। तो अब हाँ यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद अब आपको बताना है कि फ्री एंड पे एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा। लेट्स से फ्री एंड इज सी। हाँ सर। यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा और शियर स्ट्रेस यही फ्री एंड पे क्या होने वाला है।
तो सर इस केस में सर ये होगा कि अगर हम इसको पीछे की तरफ सर शिफ्ट कर देंगे, और अगर सर पूरा लेंथ हम ये जो रॉड है उसका एल मानते हैं, तो सर पहले L/2 सेक्शन में तो सर एक टॉर्शन रहेगा सर, वो टी के ही इक्वल रहेगा। लेकिन सर जो लेटर पार्ट है, मतलब L/2 से एल तक, वहां पे सर कोई टॉर्क नहीं रहेगा, वहां जीरो हो जाएगा। तो सर अगर एंगुलर स्ट्रेन देखें, तो सर जो एंगुलर स्ट्रेन मिड पॉइंट का आएगा सर, वही फ्री एंड का भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सर टॉर्क है नहीं, जीरो है, तो सर वो दोनों सेम हो जाएगा। और सर चूंकि फर्दर सेक्शन में कोई टॉर्शन है ही नहीं, तो सर उसका जो स्ट्रेन का वैल्यू है सर, मतलब टॉर्शनल स्ट्रेन सर जीरो हो जाएगा। मैं शियर स्ट्रेस पूछा था मैंने, शियर स्ट्रेस फ्री एंड पे क्या होगा? सर शियर स्ट्रेस सर जीरो हो जाएगा सर, क्योंकि वहां टॉर्शन नहीं है। ओके चलो ठीक है विज्ञान। यस सर। नाउ फीडबैक टाइम। हाँ सर। आपने सारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है। हाँ ओके सर। ठीक है, तो बार पे समवॉट इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो इधर उधर करते रहते हैं फिगर्स, है ना, और प्लॉट कराते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल लेके चलो और काम होके आंसर देते चले जाओ। ठीक है ना? हाँ ठीक। करेक्ट। थोड़ा सा ये लेकिन कर्व वगैरह देख लेना, है ना? हाँ सर कर्व थोड़ा सा डिग्री बहुत बढ़ गया तो इसलिए, क्योंकि ये अक्सर वहां पे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ही पूछते हैं। ठीक है ना? ठीक सर, कर्व ड्राइंग देख, है ना? हाँ। चलो फिर यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं और फिर सर नेक्स्ट सेशन में। एक चीज सर हमको पूछना था सर आपसे। हाँ बोलो। सर जैसे एक सर बेंडिंग इक्वेशन में सर एक हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला एक सर निकालते हैं ना, M/I इज इक्वल टू, मतलब सिग्मा बाई वाई इक्वल टू M/I इक्वल टू E/R सर, ऐसे करके। तो हाँ सर हाँ। इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आता है वो EI/M करके आता है। तो सर इसमें बोलता है कि अगर मान लेते हैं किसी मतलब किसी बीम में अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, तो मेरा जो इलास्टिक कर्व होगा सर वो सर्कुलर हो जाएगा। ये सर उससे हम कंक्लूड करते हैं। तो सर लेकिन अगर सर ये डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन को देखें, d2y/dx2 इक्वल टू M/EI, तो सर अगर यहाँ से m कांस्टेंट है तो सर y और x का रिलेशन सर पैराबोलिक होता है। तो सर एक क्वेश्चन सर बार बार पूछता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से ये सर्कुलर दिख रहा है और y के इक्वेशन से ये पैराबोलिक है, तो ऐसा डिफरेंस कहाँ से आता है? एक्चुअली जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्ट इक्वेशन होता है वो क्या आता है, d2y/dx² डिवाइडेड बाय 1 प्लस dy/dx होल टू द पावर 3 1 प्लस dy/dx यस सर स्क्वायर एंड होल टू द पावर 1/2। हाँ सर एग्जैक्ट ये इक्वेशन होता है। ठीक है, ठीक अब हमने क्या किया था, लोअर ऑर्डर को जीरो कंसिडर कर लिया था, यस तो फिर अप्रोक्सीमेट वो आ गया। हाँ समझ गए। ठीक है ना? हाँ सर समझ गए। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हाँ नेक्स्ट सेशन में। ओके सर।